آپ کو بتائیں کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور لاہور میں لیگی قیادت اور رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے ہیں۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کے لیے قومی اسمبلی کے حلقہ N123 کے ریٹرننگ آفیسر سے کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف کے لیے پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 158 سے کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں، تو وہیں پنجاب اسمبلی کے ایک اور حلقہ PP 164 سے بھی شہباز شریف کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سینئر پارٹی رہنما رانا مبشر اقبال نے قومی اسمبلی کے حلقہ N124 سے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا کہ کون کون سے اہم رہنماؤں نے آج کاغذات نامزدگی حاصل کیے؟ جی بالکل، عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کروانے کا پہلا روز تھا، تو آج کے روز پنجاب میں اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے N123 اور PP 158 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ اسی طرح سے استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے N119 PP 149 اور PP 150 کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کیے، جبکہ PTI کے رہنما شفقت محمود نے N128 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے PP 174 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے PP 171 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے، جبکہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ان میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مبشر اقبال نے N124 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ نون لیگ کے رہنما نذیر چوہان نے PP 162 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ اسی طرح سے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما شعیب صدیقی نے N119 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے، جبکہ تحریک انصاف کی جیل میں موجود رہنما صنم جاوید نے بھی کاغذات محمد نامزدگی اشفاق، حاصل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ حسن رضا بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حسن، بتائیے گا، انتخابات کے مراحل کا آغاز ہو گیا ہے، کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، IPP کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ وصول کرنے شروع کر دی ہیں۔ جس طرح سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت رانا مبشر اقبال، میاں عمران جاوید، حمزہ شہباز شریف اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ اس طرح IPP جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان، تمام کے جو افراد ہیں وہ نامزدگی کاغذات وہ وصول کر رہے ہیں اور یہ جمع بھی کروا دیں گے، لیکن حتمی طور پہ جو جن حلقوں میں امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا وہ 10 جنوری تک باقاعدہ طور پہ اپنی سیاسی جماعتیں اس کا باقاعدہ اعلان کریں گی اور کورنگ کینڈیڈیٹ کے بھی حوالے سے اعلان کرے گی۔ یوں اگر دیکھا جائے تو آج سے باقاعدہ طور پہ تمام سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ زور پکڑتے دکھائی دی کہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے لیے ریٹرننگ افسران کے دفاتر گئے، وہاں پر انہوں نے اپنے حلقے کے حوالے سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی وصول ٹھیک ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد اشفاق بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ۔ صدر الیکشن کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے ضابطۂ اخلاق بھی جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق سیاسی جماعتیں اور امیدوار ایسی رائے کا اظہار نہیں کریں گے جو نظریے پاکستان کے خلاف ہو۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، سیاسی جماعتیں اور امیدوار ایسی رائے کا اظہار نہیں کریں گے جو ملکی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف ہو۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں مزید کن باتوں پر زور دیا گیا ہے، جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، بتائیے گا۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے جو عام انتخابات ہے اس کے متعلق ضابطۂ اخلاق جاری کیا گیا ہے، جس میں سیاسی جماعتوں امیدوار کو کسی ایسی اظہار رائے سے جو ہے وہ گریز کرنا کہا گیا ہے جس سے فوج، عدلیہ، نظریہ پاکستان اور اداروں کی جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہو، جبکہ سیاسی جماعتیں یا امیدوار پولنگ مواد یا بیلٹ پیپر کو مسح کرنے کو جو ہے وہ بدعنوانی کی کارروائی جو ہے ان کے خلاف عمل میں لائی جائے گی۔ سرکاری ملازمت رکھنے والے شخص کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کی جو ہے حمایت نہیں کر سکتا، جبکہ ضابطۂ اخلاق میں بتایا گیا کہ امیدوار انتخابی عمل میں کسی بھی تشدد کو ترغیب دینے یا تشدد سے بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کی باتوں سے گریز کیا جائے گا جن میں تشدد کا عنصر شامل ہو۔ شکریہ آپ کا وقار۔ آپ کو بتائیں گے قلعہ BNA کے کمانڈر 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں۔ تنظیم سے علیحدگی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ سابق BNP کمانڈر سرفراز احمد منگلزئی کی جانب سے کہا گیا کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ مستنگ کے علاقے اسپلنجی سے ہے۔ 1991 سے لے کر 2009 تک
मैं महकमे खुराक में सरकारी मुलाजिम रहा हूँ। 2009 में मैं चंद लोगों के बिकावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। कुछ चंद लोग हैं जो अपने ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इर्द गिर्द मज़ीद हमने नज़र डाली जहाँ पर इसमें तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और लोगों के अगवा बराए तावान बैरून ममालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये तमाम चीज़ें देखकर हमने महसूस किया कि यहाँ कौमियत और इस सरज़मीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ़ अपने ज़ाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया और अब भी जारी है। इस तमाम साजिशों में ख़ासकर इंडिया का हाथ है। इस तहरीक में ख़वातीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जंग को ख़वातीन को इस जंग में धकेला जा रहा है। हमारी बलूची रवायात है कि ख़वातीन को एक एहतराम की निगाह से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन को जंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। मेरे पास पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग, चाहे इस तरफ नुकसान दोनों तरफ से काफ़ी हुआ है, दोनों तरफ से नुकसानात काफ़ी हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों से माफ़ी का भी तलबगार हूँ जिन लोगों को हमारी वजह से तकलीफ़ें उठानी पड़ी, उन्हें दुख उठाना पड़ा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं कि भारत की पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का बड़ा हदफ बलोचिस्तान रहा। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलोचिस्तान से होके जाता है। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की है। हमसाया मुल्क हालात ख़राब करने के लिए बलोचिस्तान में साजिशें करता है। मक्कार दुश्मन हमारी धरती को नुकसान पहुँचाना चाहता है। पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान के आवाम को फोकियत दी है और इस वक्त रियासत के 3 अहम सतून बलूचिस्तान से हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशिशें की। दोस्त ममालिक से SIFC के लिए ताउन हासिल करने के लिए राब्ता किया, जिससे नाराज़ बलोच रहनुमाओं के रियासत के बलूचिस्तान दोस्त इक़दामात पर एतमाद बढ़ रहा है। भारत के पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का सबसे बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान दुश्मनों के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। इसीलिए भारत बलूचिस्तान में हालात की गुमराह करने के लिए, हालात को ख़राब करने के लिए दहाइयों से कोशिशें कर रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रुक करते हैं शहरी कायद का लियारी अलायंस के उम्मीदवारों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर सजाद खट्टक को सिंध बदर किया जाए। उम्मीदवार लियारी अलायंस की जानिब से खत में ये मुतालबा किया गया है। किस बुनियाद पे ये मुतालबा सामने आ रहा है, जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध में जो है सज्जाद खट्टक जो है डायरेक्टर हैं, इन पर अदम एतमाद का इजहार किया है लियारी अलायंस के उम्मीदवारों ने। इनका कहना है कि जो सज्जाद खट्टक साहब है ये एक पार्टी की जो है खास जो है शख्सियत है। यही वजह है कि इनका इंतखाबात में किरदार जो है वो मशहूर हो सकता है, और पहले भी माजी के अंदर भी जो है इन्होंने जो इंतखाबात में किरदार किया था उससे ये मुतमईन नहीं है। लियारी की हम बात कर लें, उम्मीदवार है NA 239 से अब्दुल शकूर शदाद, उम्मीदवार है 306 से इलामा रजी हसनी, और ठीक है, अब देखना ये होगा कि इस खत पर का इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़। अहम खबर आपको दें कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया है और फायरिंग थाना एयरपोर्ट की हदूद में की गई है। आपको रावलपिंडी से ये खबर दे रहे हैं, जहां एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर फायरिंग की इतलात सामने आ रही हैं और ये जो फायरिंग है वो थाना एयरपोर्ट की हदूद में की गई है। और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल से केस की समाअत से वापस आ रहे थे जब ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं अवैस अब्बासी से। जी अवैस, बताइएगा।
जी देखिए, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल से केस की समाअत करके वापस आ रहे थे तो ओल्ड एयरपोर्ट की हदूद में जो है पुलिस के रोकने के ऊपर नौजवान ने फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग के नतीजे में जो है वो कोई जानी नुकसान तो ऐसा नहीं है, ताहम जो है जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी और उनके स्क्वाड जो है बाल बाल बच के ये पुलिस के रोकने के ऊपर इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि नौजवान ने फायरिंग की है, जिसके बाद पुलिस ने जो है नौजवान को पकड़ लिया है। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जाम हुई, ताहम किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और वहाँ से जज मोहम्मद बशीर बाहिफाजत जो है वहाँ से अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो गए थे। अवैस, ये भी बताइएगा कि जैसा आपने अभी बताया कि मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तो कुछ मालूमात मिल सकी पुलिस ने आपको बताया हो इस हवाले से, क्या इंटेंशंस थी मुलजिम की? जी देखिए, अभी तक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि पुलिस के रोकने के ऊपर जो है मुलजिम ने फायरिंग की है। मुलजिम 9 उम्र बताया जा रहा है और रावलपिंडी की हार्ले स्ट्रीट का रिहायशी है और पुलिस के रोकने के ऊपर इसने फायरिंग की, जिसके बाद जो है पुलिस इसके ताकुब में लग गई और पुलिस ने इसे पकड़ भी लिया। ताहम ये जो है ऐसे जब भी इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इसमें किसी भी किस्म की टारगेटेड वारदात का जो है वो कोई सबूत नहीं मिला। ये जो है पुलिस के रोकने के ऊपर जो नौजवान जो है उसने फायरिंग की है, शायद इसमें डर का अंसर भी शामिल हो चुका है और ये नौजवान जो है पीएफ चौक में से जो फायरिंग की है रावलपिंडी का रिहायशी है और इसमें जो है पुलिस के रोकने के वजह से उसने फायरिंग की, नौजवान को अंदाजा नहीं था कि ये एहतसाब अदालत के जज ये बताएगा इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक क्या मालूम हो सका, शायान अली कहाँ से हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक है? जी देखिए, शायान जुल्फकार इनका नाम है और ये हार्ले स्ट्रीट रावलपिंडी का ही इलाका है, वहाँ के रिहाइश पजीर है। इन्हें जो है अभी उसके रोकने के ऊपर जो है रावलपिंडी पुलिस ने जब रोका तो उसके बाद इन्होंने जब फायरिंग कर दी, जिसके बाद जो है उन्हें पुलिस ने फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अरेस्ट कर सही, और इसमें खुशहाल बात यह है कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वैसे जैसा कि आप बता रहे थे, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकें कि जैसा कि आपने बताया कि एहतसाब अदालत से वापसी के ऊपर वो उन पर ये वाकया पेश आया है जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर फायरिंग का, तो गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, अगर आपको इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो तो? जी देखिए, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो है साबिक वजीर आजम के खिलाफ जो तोशाखाना केस है उसकी समाअत के लिए अडयाला जेल जो है रेगुलरली ट्रेवल करते हैं। ये हफ्ते के अंदर 2 से 3 उनके चक्कर लगते हैं। तो जज साहब जो ट्रेवल करते हैं उनके साथ उनका स्क्वाड भी होता है और एक प्रोटोकॉल की सूरत में जो है वो अडयाला जेल जाते हैं और वहाँ से आते भी हैं। तो इस दौरान जो है सड़क के ऊपर जो स्क्वाड की गाड़ियाँ होती हैं वो अमूमन दूसरी गाड़ियों को जो है आगे से हटने का इशारा करती हैं, तो उनके साथ जो है जज साहब के साथ अमूमन एक स्क्वाड की गाड़ी होती है, उसके साथ साथ जो है सरकारी गाड़ी जो हुकूमत की तरफ से जज साहब को अलॉट हुई हुई है वो उनके साथ होती है। तो ये भी अमूमन तय इत्तलात के मुताबिक ऐसी लग रहा है कि रोकने के ऊपर जो पुलिस की जानिब से नौजवान ने फायरिंग की है ये उनके ऊपर, और इससे जो किसी किस्म के जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। सही है। वैसे अभी आप बता रहे थे कि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई इस वाक़े के बाद, अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं वहाँ? जी फौरी तौर पर पुलिस दीगर नफरी भी वहां पर पहुंच गई है और फायरिंग के वाक़या होने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए जो है रोड पर ट्रैफिक जाम हो गई, ताहम अभी सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। रोड खुल गई, पुलिस ने जो है इस नौजवान को अरेस्ट कर लिया और थाना एयरपोर्ट जो है मुंतकिल कर दिए गए। इससे बाकी फर्दर इस हवाले से तफ्तीश भी की जा रही है इस नौजवान से। सही। वैसे अभी आप बता रहे थे कि लगता ये है कि किसी खौफ के नतीजे में मुलजिम ने फायरिंग की है, उसकी इंटेंशन जो है वो किसी को टारगेट करना नहीं था। कैसा खौफ, अगर आप इसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल्स दे सकें? जी देखिए, ये रियली जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं हाईवे पे पर्सनैलिटी तो उसके स्क्वाड के साथ जो है पुलिस की मोबाइल भी ट्रैवल कर रही होती है। इसके साथ साथ जो है रास्ते के अंदर जो है पुलिस रोकती भी है दीगर गाड़ियों पर भी मशकूक सूरत हाल नजर आए तो नौजवान जो है वो गन भी अपने साथ कैरी कर रहा था। सही, तो ये रावलपिंडी में फायरिंग का वाकया पेश आया है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी के करीब ये वाकया पेश आया है। इस तमाम तर इस वाकये की तफसीलात बता रहे थे अवैस अब्बासी। आप हमें, आपका बहुत शुक्रिया।